Hello students. Today I am making this video with a dedicated target of students. Those who are ready to take MBA exams in the coming years, especially the 12th pass out students. Those who cleared 12th this year and now have taken admission to the university colleges and now doing their BCom. And especially I say when I make this video, especially for the commerce and art students, those science students, if they watch this video, they will also be benefited a bit. But especially for the commerce student, when we say MBA exam is meant for the commerce students. So every average common student, a commerce student, is basically intending to do the MBA. So, when do we really need to start our MBA preparation? Now you're in college, so you are thinking that I will do MBA once I will be in the third year and then I will take some test and then crack MBA. Many of you do not really know what are the colleges you have to aspire for and how do you really prepare for these exams. The reason is like there is no counseling on these issues, and I'm just trying to make you aware by this video. If you watch this video to the end, I'm sure that you will be enlightened and you will take a decision today only after watching my video. This is a guarantee to you. Kindly watch it to the end and then plan something substantial for your career. See, let me talk about this. What all are the MBA colleges in India are, and what are all kind of exams we take. Once you do your graduation, then you are entitled to take your CAT exam, which everybody knows, and then we have a ZAT exam, which has been Xavier's aptitude test. And let me tell you one thing: I am not a counselor as such. I teach English. I've experienced students that doing these things, and I've experienced that what all mistakes they do. I'm not as a counselor that I will be able to tell you these all are the colleges and they are the colleges there, these many seats are there. I really do not know that much. But I definitely can tell you when to start, what to do, and certain other things. But exams, what kind of exams are there? One CAT exam is there, then ZAT exam is there, then one IAFT exam is there, then MICA exam is there, then NMAT is there, then SNAP symbiosis is there, TIS is a very prestigious paper is there, and then CMAT exam is there, then MAT is an average exam is there, and then those who aspire to go abroad and do their studies there, they have to take GMAT exam. But as far as India goes, the most prestigious paper is CAT. Every commerce student, most of us, and I will say 50% of the science students also, rather more than 50% of the science students, after doing their graduation, they take this CAT exam. So one thing that comes to your mind is if you're not an aspirant of CA, and if you're not an aspirant of MCOM, definitely you go for this CAT exam. Now, do you realize when to do the CAT preparation? Everybody says कि यार ये third year में होता है. So it's okay, you have to do in third year only. So do you really feel that you really need to plan for this exam in third year only? And that is what the catch is. So when in our homes, I say, I am not accusing anyone, when in our homes, suppose my child says कि now I am in BCom now, I want to prepare for CAT exam, तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, पहले BCom तो कर ले फिर देखेंगे मतलब फादर ने कहा फिर देखेंगे तो अभी सोचो फिर देखेंगे लेकिन फिर देखेंगे मतलब वो फिर कब आएगा विल इट बी इन द थर्ड ईयर विल बी सेकंड ईयर इन द फर्स्ट ईयर और आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड ईयर आई विल स्टार्ट डूइंग द कैट प्रिपरेशन तो दैट्स व्हाट आई वांट टू एनलाइटन यू ऑन दैट कि फिर देखेंगे मतलब वो फिर कब आएगा सी इस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछ रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काइंड ऑफ पेपर होता है क्वेश्चंस होते हैं एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है एंड देन इंग्लिश होती है ठीक है वर्बल लॉजिकल रीजनिंग होती है एंड जीके होती है ये चार टाइप के पांच टाइप के सेक्शंस हैं जिन पर वो क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम में वेरी करता है कि कैट में क्या आएगा और जैट में क्या आएगा या स्नैप में क्या आएगा या एनमेट में क्या आएगा वो लेवल अलग अलग हो सकता है बट सब्जेक्ट्स रिमेन द सेम किसी में जीके नहीं भी आता और किसी में जीके आता भी है तो आप पहले से टारगेट करते हैं मुझे आईएफटी देना है तो भैया उसमें जीके आएगी तो मैं जीके भी प्रिपेयर करूंगा बट आपको लगता है नहीं मैं कैट का स्टूडेंट हूँ मुझे कुछ और करना ही नहीं है सपोज यू कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट ओनली कि नहीं बस मैं कैट ही करूंगा नहीं कुछ नहीं करूंगा तो ठीक है आप जीके मत पढ़िए वैसे तो पढ़ना फिर भी चाहिए बिकॉज द रीजन इंटरव्यू में तो पूछ ही सकता है बट फिर भी
ये 4 सेक्शन आपसे वो पूछेगा किसी भी एग्जाम में, मोटा मोटी ऐसा मान लें, वी कैन से ऑन एन एवरेज दीज 4 सेक्शंस आर देयर, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, क्वेश्चंस आर देयर। आपने अगर जिन्होंने बीएमएस की तैयारी करी थी, आईपी की तैयारी की थी, यू नो दिस व्हाट दे आर, बट द लेवल विल गो हायर दिस टाइम, ओके। आपको पता है आपने बीएमएस की प्रिपरेशन किया और आपका स्कोर क्या आया, हैव यू स्कोर्ड 100 to 100? If you haven't, it means BMS was really tough paper and it means you were not well prepared. Let me tell you one thing. If you scored 1000 ना, फिर कैट नहीं होएगा for sure. Because the reason आपने शायद इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था. Let me tell you one thing. I may sound very crude but this is a fact. अब या तो क्रूड को फेस कर लीजिए या उसको आंख बंद कर लीजिए, अब आपकी चॉइस है. But now in these 3 years are your final years. यहाँ से you have to take a plunge in your career. अब कोई कहेगा नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ना आपको खुद है, तो इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि भैया क्या करना है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, एक बार आप कैट पेपर कर लेते हो तो उसमें फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ग्रुप डिस्कशंस की प्रिपरेशंस भी करनी होती हैं, नहीं? फिर आप वहां जाते हो तो कई बार ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, तो वो वैट काइंड ऑफ पेपर होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट, वहां पर ऑन द स्पॉट आपको आर्टिकल लिखने के लिए दे देते हैं, तो यानी राइटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी आपको प्लान करना होता है। ये राइटिंग स्किल ओवरनाइट रेडी नहीं हो जाती, इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है। एंड देन इंटरव्यू प्रिपरेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड व्हेन यू गो टेक द एग्जाम। फिर आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है, वैट क्लियर कर लेते हो, जीडी क्लियर कर लेते हो, तो फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा, उसका भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इन 3 सालों में ही करना होता है। एंड देन प्रोफाइल बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बैठ जाते हो इंटरव्यू टेबल पर तो आपका सीवी क्या बोलता है, आपके जी आपने कहा जी मेरा 12th में 99 था, अब मैं 10th में ए ग्रेड था, मेरा 99 था, मैं तो बड़ा स्टूडियस हूँ, कॉलेज में भी मेरे 95 आ रहे थे, इसमें भी मैं 100 परसेंटाइल लेके आया हूँ, मान लिया। तो ये प्रोफाइल एकेडमिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट को कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो दैट वी नीड टू सी। कुछ लोग कहते हैं जी हम कॉलेज में सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ कहते हैं जी हमने जी इंटर्नशिप करी है, लेकिन देखना ये है कि क्या सोसाइटीज करना ज़रूरी है, क्या इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, या अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा करना होता है जो शायद आप मेंटली बता सकता है। नहीं तो फिर वही 20 साल का स्टूडेंट 20 साल के स्टूडेंट को गाइड करता है। व्हेन यू गो टू कॉलेज एवरीबॉडी इज रशिंग के जी मैं सोसाइटी ज्वाइन कर लूंगा, पता नहीं मैं कितना महान बन जाऊंगा। हो सकता है इंटरव्यू में वो सोसाइटी मैटर ही ना करता हो, तो क्या मैटर करेगा। यानी ये प्रोफाइल बिल्डिंग भी कोई ना कोई आपको बताएगा, और ये 3 साल के प्रोग्राम में हमें पहले दिन से सोचना होगा, ठीक है। दिस व्हाट द केस इज नाउ। व्हेन डज कैट एग्जाम हैपन, ये भी समझ लें, आपको अगर नहीं पता है तो वैसे तो वर्चुअली मालूम है, फिर भी नवंबर एवरी ईयर। तो इस बार 29 नवंबर को था, हर साल नवंबर में होता है, वो भी जो भी संडे होता है वो 28 to 27 हो, उसमें हो जाता है। नाउ ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज विद ए स्टूडेंट, अब जैसे आप कॉलेज में आए तो आपके पास कितना टाइम होता है वो पेपर देने के लिए, यानी नवंबर में पेपर होता है। आप समझ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है अगस्त से दिसंबर तक, जो अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से आपका नवंबर में शुरू हो रहा है, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 3-4 months, और एकदम हम आपको सैंडविच करके 2 सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। This is something we cannot really help with it, but you have to face the consequences. Let me tell you one thing. You were waiting for your results, आएगा जी मैं फिर ये करूंगा, फिर अच्छा मेरी एडमिशन हो जाएगी, फिर मैं पढ़ूंगा। तो 3-4 महीने आपने कुछ भी नहीं करा, ना तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ना आपने कुछ और पढ़ा, बस आप वेट करते रहे। ठीक है, इट इज ऑल राइट, किसी ने कहा भी नहीं कि भैया 12th में नंबर तो आ गए, एडमिशन तो कहीं ना कहीं हो जाएगी, आगे की सोचो। लेकिन हम आगे की कब सोचते हैं, जब हमारा एग्जाम आ जाएगा, एडमिशन होगी, अब मैं सोचने बैठूंगा, अभी नहीं। मैं नवंबर में बैठूंगा सोचने के लिए मेरा कैट एग्जाम क्या आएगा। यही मैं गाइड करना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर अगस्त से दिसंबर तक, सेकेंड सेमेस्टर जनवरी टू जून, यानी अगर आप 2021 में अभी आपने एडमिशन लिया है तो यानी 2022 में आपका जो है ये पेपर 2022 जून में आपका फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर जुलाई से शुरू होगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर आपका जनवरी टू जून होगा, यानी जून 2023 में आपका सेकेंड ईयर पूरा हो जाएगा। और फिर फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो जुलाई टू अक्टूबर तक आप पढ़ेंगे, और फिर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कैट का एग्जाम नवंबर 2023 में होगा, यानी जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। तो यानी आपके मन में जो था ना कि 3 साल होते हैं पढ़ने के लिए, सॉरी माय डियर, 3 साल नहीं होते, प्रैक्टिकली 1 ईयर है। फर्स्ट ईयर था और आपके पास सेकेंड ईयर था, वो थर्ड ईयर में तो शुरू में ही पेपर हो गया ना आपके पास, तो प्रैक्टिकली 2 ही साल थे। आप सोच रहे 3 साल में पेपर होता है, सॉरी माय डियर, अब आप देख रहे हैं कि पेपर कब होता है।
ठीक है, आपने शायद कभी बैठकर सोचा भी ना हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, टू फोर्स यू थिंक कि यार कैट का एग्जाम कब होगा। नाउ जो नॉर्मल कोर्स होता है क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर नॉर्मली फ्रिस्क्स अवे बिकॉज द रीजन, जैसे आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए, जो आपके सीनियर्स थे उनसे पूछ लेना अगर मैं एक भी बात गलत कह रहा हूँ तो। जब आपका जो अगस्त में एडमिशन शुरू होता था ना, तो फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, यू लर्न टू कोप विद द न्यू एनवायरनमेंट। कॉलेज जाते हो, कॉलेज में एक माहौल होता है, आप पढ़ना सीखते हो कैसे होना, क्लासेस करनी, अर्ली मॉर्निंग जाना, शाम को 4 बजे आना, ये प्रेशर आता है। फिर यू हैव ड्रीम्स टू एंजॉय लाइफ। आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे थे, आपने भाई यूनिफॉर्म पहनी थी, हमने बंक नहीं मारने दी, अब आपको लगता है भैया अब तो जिंदगी जीने की है। ये भी आपके दिमाग में होता है। यू थिंक देर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, आपको लगता है बहुत समय कर लेंगे यार, थर्ड ईयर में होता है, मे बी लाइक दैट। यू फाइट टू स्कोर 90% द कॉलेज। हो सकता है आप में से 2-4% लोग हों जो सोचते हो कि यार मुझे कॉलेज में टॉप पर रहना है और मेरे 90% आने चाहिए। ठीक है यार, मैं सब जने काउंसलर कहते हैं कि नंबर मैटर नहीं करते, लेकिन 1947 से लेके और अभी तक 2022 तक नंबर मैटर करते हैं। जो भी कह रहा है नंबर मैटर नहीं करते, वो बिल गेट्स की बात करता है या 4 लोगों की बात करता है, लेकिन जो 4000 फेल हुए उनकी बात नहीं करता है। तो इसलिए नंबर भी मैटर करते हैं। ठीक है, नहीं मैटर करते होंगे फिर आप फाइट करेंगे, आप भी बिल गेट्स बन जाएंगे, मे बी लाइक दैट। बट सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर किसी आईएम जैसे लेवल की बात करते हैं तो वहाँ परसेंटेज रिफ्लेक्ट जरूर होती है, तो परसेंटेज लाना भी जरूरी होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि तारे जमीन में हमने कह दिया, इसमें कह दिया कि नहीं पढ़ो कुछ नहीं होता, आदमी ये भी कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, बट ये काउंसलिंग में अच्छी लगती हैं बातें। बट अगर आपका टारगेट है आईएम करने के लिए, अगर आईआईटी करने के लिए, तो क्या परसेंटेज मैटर नहीं करती? आप अपनी आत्मा से पूछ के देखिए, जब आपने 12th में आए और आपने सेंट स्टीफंस की बात करी तो परसेंटेज मैटर नहीं करी? पूछिए उस काउंसलर से जो कहता है परसेंटेज मैटर नहीं करती। भाई परसेंटेज मैटर करती है। ठीक है, कम आ जाए तो वो परेशान नहीं होता, ऑप्शन और भी होती हैं। लेकिन अगर आपको आईएम का टारगेट है तो फिर परसेंटेज मैटर करेगी, तो इसलिए कुछ लोग 20% की कोशिश भी कर रहे होते हैं। फिर जी आप फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका इसी चक्कर में निकल जाता है, कुछ ने मजे करे थे, कुछ ने पढ़ाई की थी, कुछ फाइट कर रहे थे। फिर सेकंड सेमेस्टर आ जाता है। सेकंड सेमेस्टर गिव्स यू द रियलाइजेशन दैट यू हैवंट बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर कॉलेज स्टडीज, सो यू वर्क हार्ड। सेकंड ईयर में आपको लगता है, सेकंड सेमेस्टर में लगता है अरे यार 90% तो नहीं आए, अरे यार मस्ती ज्यादा कर ली, बंक ज्यादा मार ली, इस सेमेस्टर में मैं पढ़ लूंगा। जब सेकंड सेमेस्टर में फिर आप पढ़ने लग जाते हैं, प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर में आपने थोड़ा सा अपनी डिजायर से फुलफिल कर ली होती हैं। एग्जाम्स आर नॉर्मली ओवर बाई जून, में पहले ही बता चुका हूँ, तो यानी फर्स्ट सेमेस्टर आपका जून 22 में खत्म हो जाएगा। तो यानी जून 22 में आप सेकंड सेमेस्टर कर चुके होंगे और आप की कुछ परसेंटेज आ चुकी होगी। नाउ यू वेकअप फॉर द कैट प्रिपरेशन। अब आपके फ्रेंड्स करने लगते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, कुछ कैट की प्रिपरेशन के लिए मारामारी करते हैं कि यार कैट प्रिपरेशन करनी है क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाला है। आपको तब तक समझ में आ जाता है, आपके सीनियर से भी थोड़ा बहुत आप ज्ञान लेते हैं, क्योंकि जब हम एज ए काउंसलर या पेरेंट्स एज ए काउंसलर समझाते हैं तो शायद आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपको लगता है यार लेक्चर देते हैं, बट ग्रेजुअली यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स कि ओके यार ये ऐसे करना है। तो कैट प्रिपरेशन के लिए क्या करें? कैट प्रिपरेशन के लिए आप शुरू करते हैं क्या, कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लेते हैं। भाई दिल्ली में, मैं दिल्ली का हूँ तो मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में यू फाइंड मैनी इंस्टीट्यूशंस, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, वहाँ पर कोचिंग ले लेते हैं। अब कोचिंग कब लेते हैं? जून जुलाई 2022 से लेकर study for 1 year means spend third semester and fourth semester there along with your college studies। फिर आप सोसाइटीज को भी देखते हैं, जो एनजीओ वर्क कर रहे होते हैं उसको भी देखते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती करनी होती है वो भी देखते हैं। यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप कॉलेज की स्टडी के साथ साथ जो भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहां जाकर आप पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन आपके बाकी काम जो कॉलेज की शेड्यूल थे, सोसाइटीज थी, एनजीओ वर्क थे, जो अपनी मस्ती थी, वो सब चल रहे होते हैं पैरेलली। आप अचानक से एक पावरफुल मोड में आ जाते हो और आपके अंदर डबल पावर आ जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में नहीं थी, अब सेकंड ईयर में आप डबल इंजन वाला काम करने लग जाते हो कि नाउ यू आई कैन हैंडल एवरी स्फीयर ऑफ माय करियर। आप सब चीजों में जोड़ लगाते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर जुलाई ऑफ थर्ड ईयर कम्स नेचुरली, जैसे सेकंड ईयर खत्म हुआ तो आपने कितना पढ़ा? अभी आपने 2 सेमेस्टर आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी, थर्ड ईयर का आ गया। सो फॉर यू हैव स्टडीड फॉर 12 months फॉर कैट एग्जाम। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इज लेफ्ट एंड देन कैट एग्जाम कम्स। नेचुरली आप फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तो कितना समय बचा? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा है, नाउ एन एवरेज स्टूडेंट स्टार्ट्स डूइंग मॉक टेस्ट इन अक्टूबर एंड नवंबर। अगर आप कैट एस्पायरेंट हैं और 27 या 29 नवंबर को आपका एग्जाम है,
तो मॉक टेस्ट तो करेंगे ही ना आप, यानी वो अक्टूबर नवंबर में करेंगे। इसका मतलब मेरे पास अक्टूबर नवंबर मंथ नहीं है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट कर रहा हूँ। सो जुलाई का सितंबर आर लेफ्ट नाउ। जुलाई का सितंबर में भी अब क्या करेंगे? एन एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू रिवाइज द होल सिलेबस इन दीज 3 months, कम अप विद डाउट्स एक्सेट्रा। जो अपने ये 12 मंथ्स में पढ़ा था, इस 12 मंथ्स को इनकैप्सुलेट करते हो और उसके क्या क्या नाम है, काम करने की कोशिश करते हो कि यार मेरा रिवीजन हो जाए। यहाँ पर भी नई लर्निंग तो नहीं होती, आप सिर्फ उसको पढ़ रहे होते हो, रिवीजन करते हो। सो प्रैक्टिकली नो न्यू लर्निंग इन दीज 3 months ऑल्सो। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जुलाई से आप जो कर तो रहे थे, लेकिन न्यू लर्निंग नहीं कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। यानी आपके पास जो 12 मंथ्स की स्टडीज थी वही आपका इनपुट था बस। और इस 12 मंथ्स में भी एक बड़ी बड़ी बात है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू प्रिपेयर फॉर कैट फॉर 12 मंथ्स, आउट ऑफ विच यू श्योरली गिव ब्रेक टू योर कैट स्टडीज टू स्कोर 90% कॉलेज एग्जाम्स टू। 2 सेमेस्टर होंगे, 12 महीने। आप सेकंड ईयर में जब पढ़ रहे थे तो 2 बारी पेपर भी होंगे कॉलेज के, तो उन 2 वाले कॉलेज के पेपरों के टाइम पर अगर आप उसमें 90% ला रहे हो तो कैट स्टडीज बिल्कुल आप बंद कर दोगे। यानी प्रैक्टिकली आपने 10 महीने पढ़ा था सेकंड ईयर में। ध्यान से देखिए हम पढ़ कितना रहे हैं। आप देखिए आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती है, कबूतर वहीं रहता है, बिल्ली भी वहीं रहती है और खा जाती है। और अगर वो कोई हाथ उठाता है तो कौवा तार से उड़ जाता है। तो यानी प्रोएक्टिव होने वाले बंदे को ध्यान रहता है कि यार ये 12 महीने नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 10 महीने पढ़ रहा हूँ। बिकॉज द रीजन 2 महीने तो मैंने दूसरी तरफ लगाए हैं। फॉर श्योर यू हैव टू डू, बिकॉज द रीजन एकेडमिक्स के स्कोर भी मैटर करेंगे कैट की प्रोफाइल में। So with the 10 months of studies, that too 2 days a week, including holiday, festival and all, how much have you studied? भाई जिस भी कोचिंग में जाओगे वो कब पढ़ाता है? 2 days a week पढ़ाता है, सैटरडे संडे पढ़ाता है या वीकडेज में पढ़ाता है? तो 2 ही दिन तो पढ़ते हो, 3-3 घंटे जाकर, मैक्सिमम 4-4 घंटे। बाकी तो खुद ही पढ़ना होता है। तो प्रैक्टिकली आपने पढ़ा ही कितना? सेकेंड ईयर में 2 days a week, वो भी 2 hours 3 hours a day, उसमें आपने पढ़ा। और उससे मतलब 6 hours a week आपने पढ़ा, और वो भी 10 months में पढ़ा। बीच में छुट्टियां भी आ गई, दिवाली, होली, आपका बर्थडे, किसी का फेस्टिवल, कोई फंक्शन, उसमें भी आपने छुट्टियां करी होंगी। ओवरऑल मिलाकर अब आप समझ ही सकते हो कि आपने कितना पढ़ा था कैट के लिए। एंड द टॉप क्वेश्चन इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन सबको सोचने के बाद ना, अभी तक आपने इतना समझ लिया है कि आपने कैट के लिए कितना पढ़ा है, शायद आपको समझ आ गया होगा। विद whom आर यू competing? आपका कंपटीशन किसके साथ है? कभी आपने रियलाइज करा है कि कैट में कंपटीशन किसके साथ होता है? इफ यू सी द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट 10 years, नॉट 5 years, मैं कह रहा हूँ आज गूगल पे बैठ जाना और 10 साल के रिजल्ट निकालना। ऑल द टॉप 10 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। 2750 आउट ऑफ 3000 टॉप स्टूडेंट्स वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। 2-3 साल पहले मैंने ये रिजल्ट देखा था, मुझे मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि डजंट मीन साइंस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द एलियन प्लेनेट, कि वो साइंस वाले ही कर पाएंगे, कॉमर्स वाला नहीं कर पाएगा। पेपर तो कॉमर्स वाले के लिए था, तो फिर साइंस वाला कैसे निकाल रहा है अभी ये पेपर? देखने की बात तो ये है, वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उनका मैथमेटिक्स आपसे कई गुना अच्छा है। आप एक साइंस वाले की बात करिए जो आईआईटीएन है। देखिए वो 8th में जाता है विद्या मंदिर में, वीएमसी की क्लास में वो 8th में बैठता है, फिर 9th में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, फिर 12th में पढ़ता है। फिर वो कॉलेज के आईआईटी के दौरान वो पूरे पूरे 4 साल पढ़ता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। उसने फोर्थ ईयर लगाया होता है, वो आपकी तरह थर्ड ईयर में पेपर नहीं दे सकता, फोर्थ ईयर। अब कोई स्टूडेंट इतने साल तक वीएमसी वाले टीचर से और आईआईटी वाले टीचर से मैथ्स पढ़ेगा, और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट किसी ट्यूशन मास्टर से मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो फिर आप खुद ही गेज कर सकते हो कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन द मैथमेटिक्स कितना होता है। आई कैन डू मैथमेटिक्स, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट गुड एट इट, बट मेरा एप्टीट्यूड क्या है? क्या मैं क्वेश्चन की फ्लेयर को समझ सकता हूँ? क्या मैं बिना पेन उठाए पेपर कर सकता हूँ? यानी ये चीजें तो यार इंटेंस हार्डवर्क से आती हैं, इसीलिए वो थोड़ा हमसे ज्यादा अच्छा कर जाते हैं। ये आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं, मैं नहीं ऐसा नहीं मानता, तो आपकी मर्जी। लास्ट 10 साल के रिजल्ट निकाल के देख लीजिए। कंपटीशन को पहचानना सीखिए। आंख बंद करके नहीं 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, उसमें तो कहने की बात ही क्या है। लेकिन फिर जो होना है वो तो होएगा ही, वो वन कैन वेरी वेल सी व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट्स स्टार्ट अर्ली, निप इन द बर्ड। My saying is, if I am not that very good at like the science student, what should I do? I should start early, yaar.
इफ वी लर्न थिंग्स फ्रॉम द डे वन ऑफ आवर कॉलेज डेज, मान लीजिए जिस दिन मैं फर्स्ट डे कॉलेज में गया था, यानी जैसे आप नवंबर में कॉलेज शुरू किया था, तब से अगर आप शुरू करें तो we will have 12 more months of foundation studies more than an average student. जिसने सेकेंड ईयर में कैट की क्लासेस शुरू की थी और जिसने फर्स्ट ईयर में कैट की क्लासेस शुरू की थी, वैसे मार्केट में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, बट हार्डली एनी वन, एनी स्टूडेंट यू, एनी इंस्टीट्यूट यू फाइंड, वेरी फ्यू दोज हु ट्रेन यू फॉर द फाउंडेशन बैचेस इन दी फॉर द कैट प्रिपरेशंस. अब किसी में भी अच्छे, आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूट्स, बट अब किसी भी जिसको ब्रांडेड इंस्टीट्यूट कहते हैं, सब सेकेंड ईयर में ही आपको एनरोल करते हैं. तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करते हैं? तो फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा करें कि मैं कोई फाउंडेशन बैच कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाता हो या कोई टीचर पढ़ाता हो तो वहाँ पढूं, ताकि मेरा मैथ्स और इंग्लिश सही हो जाए. तो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ आवर्स की ज़्यादा स्टडी होगी कंपैरेटिवली, यानी जब मैं सेकेंड ईयर में किसी कैट की क्लास में जाकर बैठूंगा तो मुझे सामने वाले टीचर की फ्रिक्वेंसी जल्दी समझ आएगी. ये मुझे करना है, मुझे प्रोएक्टिव होना है. स्टडिंग क्वांट, DILR and getting used to reading vocabulary and doing tough passages will get you ready for top take the learning when you go for coaching in the second year. ठीक है, सेकेंड ईयर की लर्निंग के लिए आप तैयार हो जाओगे. दिस विल गेट यू दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग थ्रू इन दी फिफ्थ सेमेस्टर. इसमें चांसेस हैं कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर में भी वो ओवरऑल 10 मंथ्स पढ़ा, तो 10 मंथ्स वहाँ 10 मंथ्स यहाँ, तो 20 मंथ्स पढ़कर आप गए हैं. फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप एंट्रेंस के लिए तैयारी मतलब पेपर दे रहे होगे, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आपने ज़्यादा पढ़ लिया होगा. एंड जस्ट इमेजिन वन थिंग, आप सोच के देखिए फॉर 1 सेकेंड, यू गेट एन आई एम द मोमेंट यू कम आउट ऑफ योर कॉलेज. भाई आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू किया था, सेकंड ईयर में भी कोचिंग पढ़ी थी, थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में आपने खुद होमवर्क करा, पेपर निकाल लिया. पेपर निकालिए और जैसे सिक्स सेमेस्टर आपका खत्म होगा, आपको IIM में एडमिशन मिल जाएगा, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, SP जैन में एडमिशन मिल जाएगा. इसका मतलब क्या? बस फिर करियर का एक ट्रैक डेवलप हो जाएगा. ये आप समझ सकते हैं कितना ईजी होगा. और नहीं तो फिर वो आपको खुद को अलग से बैठा कर पढ़ना होगा. कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, आपके किसी फ्रेंड्स की एडमिशन हो जाएगी और मेरी नहीं हुई होगी, तो फिर मुझे 10x10 के रूम में पढ़कर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार सामने वाले ने तो कर लिया बट मेरा नहीं हुआ, तो मुझे फिर फाइट करना होगा. फिर उस केस में एट द एज ऑफ 22 या 21 वो जो डिप्रेशन माउंट होता है ना यार, उस डिप्रेशन को झेलना जो है ना, एक अलग ही गेम होती है. दिस यू कैन अंडरस्टैंड. आप देखिए ना, आपने जैसे थर्ड ईयर में आए और एडमिशन हो गया आपका, थर्ड ईयर कंप्लीट करते तो आपका ड्रॉप ईयर भी नहीं हुआ, कोई एंग्जाइटी भी नहीं हुई और कोई प्रेशर नहीं हुआ कि यार मुझे अब इस साल तो निकालना ही निकालना है, ऐसा कोई मेरे दिमाग में जोर नहीं पड़ेगा. आपने तो बचपन से ये प्रोवर्ब सुनी है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. दैट इज व्हाई आई एम एनलाइटनिंग यू. डोंट थिंक ये भी बहुत टाइम है. डोंट थिंक टू दैट जो आपके आसपास लोग कह रहे हैं पहले तो BCom तक कर फिर सोचेंगे. नहीं यार, वो जमाना चला गया. ये कैट का एग्जाम है. सो इफ यू कीन टू स्टार्ट अर्ली, कॉन्टेक्ट एंड ज्वाइन द न्यू फाउंडेशन बैच with any of the institution, those who have been doing the foundation batches, you can join the batches there. You have to find out who are doing, but foundation batch में normally English और mathematics वो लोग आपको पढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं. कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाते हैं, we can definitely tell you. For that matter, your number is there, my number is there with you on the front screen. You can very well contact us for that, but I can guide you with this matter. अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जी यार इस साल में फीस क्यों लगानी है यार, पैसे लग रहे हैं इस साल में, जो भी वो इंस्टीट्यूट आपसे 10, 15, 20 हज़ार रुपये जो भी लेता होगा वो फीस लेगा. आई विल नॉट टॉक अबाउट द टर्म्स ऑफ मनी विच दे आर टेकिंग, लेकिन हाँ कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि फर्स्ट ईयर में यार फीस लगाने की क्या जरूरत है, सेकेंड ईयर में लगा देंगे. ठीक है, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हुआ, आपने वो फीस लगाई, से फॉर हाइपोथेटिकली आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूशन में आपने ट्यूशन फी देकर फर्स्ट ईयर में आपने ये सब पढ़ा, आपके 20,000 रुपीज लगे. फिर आपने सेकंड ईयर में कहीं कोचिंग करी, फिर आपने थर्ड ईयर में पेपर दिया, आपका कैट का एग्जाम निकल गया, फिर आपने जैसे ही कॉलेज में से निकले आपको आपका कैट IIM में पहुंच गए, और जैसे ही आप कॉलेज से निकले यानी आप 21 ईयर के थे, फिर 23 ईयर के थे, 23 ईयर के जैसे ही आप पास आउट हुए आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो गया, आपका कोई ड्रॉप ईयर नहीं हुआ. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड एक स्टूडेंट है जिसने जिसने इन्वेस्ट नहीं करा, उसका एक ड्रॉप ईयर हो गया, तो यानी वो क्या हुआ, 23 और 24 ईयर के बीच में एक साल उसको खाली बैठना पड़ा. एक तो प्रेशर झेला,
बड़ी बात है। फिर उसके बाद क्या, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। इकोनॉमिक लॉस क्या हुआ कि जो आपने 23rd ईयर के बाद जो इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर दी थी, तो आपने उस साल में कम से कम 20-25 लाख रुपए तो कमाए ही होंगे, जो मैंने नहीं कमाए, क्योंकि उस वक्त मैं 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के घर में पढ़ रहा था। तो मेरा लॉस क्या हुआ अगर मैं देखूं इकोनॉमिक टर्म्स में? यार कम से कम 25 लाख रुपए तो मैंने खो ही दिए हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी खो दिया है और एक ड्रॉप ईयर का टैग भी लगा दिया है। हाँ या नहीं? अब आप समझदार हैं। मेरे ख्याल से तो ये इट विल बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश काइंड ऑफ स्टेटमेंट बिल्कुल फिट बैठती है आपके ऊपर, कि अगर आप ऐसा सोचते हैं। हम लोग इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि वी आर इन ए रश, हमारे पास सोचने का समय ही नहीं है, इसलिए हम चलते फिरते सोच रहे हैं कि अच्छा कर लेंगे, बहुत टाइम है, किसी दोस्त ने कह दिया, किसी शर्मा जी ने कह दिया, किसी वर्मा जी ने कह दिया, बस हो गई काउंसलिंग। आपने तो कभी बैठ के सोचा ही नहीं यार मुझे क्या करना है। सो आई से स्टार्ट नाउ, टेक द टाइमली प्लंज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट से एनीथिंग एल्स, आई विल से, मैंने सारी चीजें थोड़ी देर में सम अप करने की कोशिश करी है। आई एम नॉट टेलिंग दिस इन एनी कमर्शियल एंगल, आई एम जस्ट सेइंग the journey of 100 miles begins with the first step that I heard a long time ago when I was in college. 100 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है, तो फिर पहला कदम आप उठा लीजिए। And it's the right time when you have to begin. Be judicious, be foresighted. I will say that begin now. I think if you begin now, you have lot of scope. We are 1 month late. I should have made this video last month, but I could recall that I found a few students contacting me कि सर कब पढ़ना है, तो मुझे realize हुआ कि यार let me give this information to all of my students. So those who are watching this, if they're 12th passer students, they must watch it and understand it. What is their plan? Should I start early or should I not start early? And I suggest you should start early today only. अभी भी मैं बात करता हूँ तो अभी भी मेरे पास 7 months हैं. If you join somewhere, any of the mentors, any of the institutions, those who have been giving you foundation batches, they will definitely shape something out of you, and then they will prepare you for next time when you go to an institution where ITN is also sitting on the other side of your class. ऑब्वियसली जब आप बैठेंगे तो उस बैच में आईटीएन भी बैठा होगा, तो टीचर किसकी फ्रीक्वेंसी पे पढ़ा रहा होगा? नेचुरली मेरी फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं पढ़ाएगा कि जी मैं बीकॉम करके आया हूँ, वो तो उसने क्लास के लेवल से पढ़ाता है। तो फिर क्लास के लेवल से पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर थोड़ी ट्रबल तो आपको आएगी। तो क्यों नहीं मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ, क्यों नहीं मैं प्रोएक्टिव हो जाऊँ कि यार मैं उस क्लास में जाकर चीज़ों को अच्छे ढंग से हैंडल कर पाऊँ। दिस इज टफ टाइम, you have to manage college studies, you have to score good there, you have to do some societies as you think. अब कितनी सोसाइटी करनी है कितनी नहीं करनी है, जब आप क्लासरूम में आएंगे तो शायद हम आपको समझा पाएंगे कि यार कैसे करना होता है मैनेज सोसाइटीज का काम, या कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है, ये हम करा सकते हैं। सो आई सजेस्ट, think judiciously, plan your career, and then take a plunge. I think if you start now, you will have a better prospects in your career. Thank you very much for watching. God bless you.